Okay, students, the chapter which we have started, that is continuity and differentiability. Continuity we have done, and let us proceed to the differentiability. What is differentiability? In class 11th we did the derivative of a function at a point. And derivative of a function at a point, we just found it's nothing but the slope of the tangent at that point to the curve of the function. It means derivative at a point means it is the slope of the tangent at that point. And we also explained it in class 11th. But anyhow, if you feel any sort of problem, then again we shall take it. But let us focus here once again. Proceed that idea further. Suppose f is a function. When we say f is a function, it means we are talking of a real valued function. And C belongs to its domain. Whatever the domain is, there is a point C in its domain. Then the derivative of f at C is defined as limit h approaches 0 f of C plus h minus f of C upon h, and this is f dash C. We shall write it like this. Now here the condition is the limit must exist. This limit must exist. And how does the limit exist? Left hand limit and right hand limit, both are required to be equal. Now this can also be written as d upon dx of, this is f of x at x is equal to c. At x is equal to c. Once you find out f dash x, then you write. So more precisely, the derivative in another way can be defined as f dash x is equal to limit h approaches 0 x plus h minus f of x upon h. So this is लिमिट जो इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए. So this is the way that how we can write this. Can also be written as d upon dx of fx. कई बार हम इसे y डैश भी लिखते हैं क्योंकि y is equal to fx फंक्शन लिखते हैं. And this process of finding, that is the differentiation. This is how the derivative is found, and all this whole process is known as the differentiation. Now certain properties, हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना. डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए. रूल्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर हमारे पास दो फंक्शन है u प्लस v डैश, then this can be u dash plus v dash means differentiation. प्लस माइनस होगा तो हम उसको सेपरेट करके उनके डेरिवेटिव ले सकते हैं. देन u v डैश, ये याद रखिए, इट इज़
यू डैश वी प्लस यू वी डैश, एक को छोड़ के एक लेना, फिर दूसरा छोड़ के लेना उनको, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एल ई, लिवनिस प्रोडक्ट। लिवनिस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इसे। देन डिवीज़न वाला देखते हैं, पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर लीजिए, फिर जहाँ पे आपको यू वी डैश माइनस यू डैश बी माइनस यू वी डैश वन बी स्क्वायर, ये डिवीज़न वाला केस हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होगा उसका स्क्वायर करिए, फिर उसको ऐसे लिखिए साथ में, इसका डिफ्रेंशिएशन लीजिए, और फिर यू के साथ रखिए डिफरेंस, तो ये आपके पास, इसको हम क्वोशंट रूल कहते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था इसकी डेफिनेशन से, और डेफिनेशन इसकी ये थे कि सपोज there is a point c which is lying in the domain of the function, then the derivative of this function f at c is defined as fch minus f of c upon h limit h approach 0, and this is nothing but f dash। और जब हमें इंस्टेड ऑफ c को हटा दें, c तो डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x of this fx, so this can be written as f of x plus h minus f of x upon h। कंडीशन यह है कि लिमिट दोनों में एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद हमने रूल्स ऑफ अलजेब्रा इसमें किया कि u प्लस माइनस वी डैश, u डैश प्लस माइनस वी डैश एंड u वी डैश इज इक्वल टू u डैश b प्लस, फिर ये वी स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस यू वी डैश, तो ये हमारे पास अब हम कोई भी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा किसी इंटरवल में, अगर वो उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। जैसे कोई फंक्शन इसमें डिफरेंशिएबल होगा, इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। और सिमिलरली ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। एवरी फंक्शन चलिए, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c, then it is also continuous। कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशियल होगा वो कंटिन्यूस ही होगा, ये बताना हम एट दैट पॉइंट। कहने का मीनिंग ये हुआ कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ऐसे लिखें एवरी तो इसका कन्वर्स क्या होगा, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये ट्रू नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि if a function is differentiable at a point c, that means f dash c is equal to f of x minus f of c upon x minus c। ये डेफिनेशन है हमारी, लिमिट x approaches c। दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर किसी ये पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, h की फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज़ बन जाती है। चलिए, x approaches c, it means x is not equal to c, ये भी याद रखना है। सो f of x माइनस f of c क्या होगा,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसा लिख लें इसे। अब अगर हम लिमिट ले लें इधर, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, जहाँ पे ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, और इन साइड ब्रैकेट में ये आएगा सारा। तो ये हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स approaches CFC, and this is equal to limit x approaches C f of x minus f of c upon x minus c into limit x approaches C x minus c, देखो ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखेंगे लिमिट x approaches C एफ एक्स माइनस दिस इज एफ ऑफ सी, कांस्टेंट है तो वही रहेगा, जी एफ डैश एक्स हो गया, जहाँ पे लिमिट लेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो बन गया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये केस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये किसकी डेफिनेशन बनी, कंटिन्यूटी की, इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस। हम कहाँ से चले थे, हम चले थे कि फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है, डेफिनेशन लेके चले हम, और जहाँ पे पहुँच गए एफ एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया। अब इसके दूसरा पार्ट देखते हैं थ्योरम का। कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन need not be differentiable। कोई हर कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं ये लूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, जो हमें पता है कंटिन्यूस है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेसर देन जीरो। अब यहीं पे अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये वन आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा। इट मीन्स राइट लिमिट जो इसकी आएगी, ये हमने इसे डिफाइन कर दिया, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेसर, डेफिनेशन आ गई एब्सोल्यूट फंक्शन की। तो राइट हैंड लिमिट पर अगर हम देखें तो राइट हैंड लिमिट हमें इस साइड से आना पड़ेगा ग्रेटर वैल्यू से, तो दैट इज इक्वल टू वन एक्स है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी जो आएगी वो हमें इस साइड से आना पड़ेगा, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, लेसर वैल्यू से, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये केस बनेगा हमारे पास, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर दूसरे ढंग से अगर हम करना चाहें इसे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि लिमिट एच अप्रोच जीरो नेगेटिव माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, दिस इज एफ ऑफ जीरो। क्योंकि एच इज लेसर देन जीरो वाला केस हम ले रहे हैं, ये जब जहाँ पे वैल्यू आएगी तो माइनस एच आएगी, दिस इज माइनस वन। लिमिट एच अप्रोच जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। तो पॉजिटिव वाले केस में जहाँ से देखेंगे तो एक्स ही रहेगा,
and this is equal to h1h, that is equal to 1. अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so therefore not differentiable at x is equal to 1 0. तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं। अब हम अच्छे रूल देखते हैं कि बहुत दफ़ा में इस रूल की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा स्टेप बताते हैं आपको। सपोज f इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन and u and v are the other two functions such that f can be represented as the composite function of this two function. f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टू फंक्शंस की कंपोजिशन से u और v की। और जहाँ पे हम ये सपोज करें कि t इज इक्वल टू वी एक्स, t इज इक्वल टू यू एक्स इफ dt upon dx and dv upon dt exist, then this df upon dx is equal to dv upon dt, dt upon dx ऐसा से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये है। मैं क्या करूँगा, इसको पुट करूँगा एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए और आपके पास जहाँ पे क्या बनेगा देखिए, ये साइन टी हो गया। मैं डी टी पॉइंट डी एक्स अब फाइंड कर लीजिए और डी टी पॉइंट डी एक्स फाइंड करने के बाद जहाँ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आएगा दिस इज 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। जो ना दिस इज 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। जहाँ पर हम इसे v करेंगे दिस इज साइन टी और इसको डी वी अपॉन डी टी फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या बना देखो, दिस इज कॉस टी, साइन टी की डिफ्रेंशिएशन कॉस टी होती है। जो फॉर्मूला भी अभी रिवाइज करेंगे हम। तो फाइनली हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना, दिस इज डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, दिस इज कॉस टी एंड दिस इज 2x और t की जगह हम वापस वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर, मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये चेन रूल ही हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास ये डी वाई पॉन डी एक्स बनेगा। जहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन बनेगी कॉस एक्स स्क्वायर, तो वो तब होती है जब एक्स हो, जहाँ पे अब एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन साथ ले लेंगे। सो दिस इज 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये इस ढंग से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्मूले हैं कुछ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ये दूसरा हो गया। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x, that is cosec x tan cot x, d upon dx of मैं tan का ले लेता हूँ अगर, तो ये sec square x होगा। ऐसे ही a raised to power x का जो होगा d upon dx, a raised to power x log a होगा। e raised to power x, that is e raised to power x होगा। फिर इसके बाद d upon dx ऑफ
लॉग ई वाला केस ले लेते हैं. दिस इज 1.mod x, 1.x ही ले लेते हैं. 1.x अगर लॉग ए जहाँ पे होगा तो फिर क्या होगा आपको बताएंगे. तो ये केसेस आप देखिए. थैंक यू.